Let's begin. We had finished understanding the poem, A Thing of Beauty. The questions were supposed to be attempted by all of you. I hope you found time and you did a little bit of it. Please बताओ अगर करा है तो भी बताओ, अगर नहीं करा तो भी बताओ. Have you done the questions? मैम आई हैव अ डाउट. Yes, beta, please ask. मैम हमने इंट्रो में पढ़ा था कि सिंथिया द मून गॉडेस के बारे में, तो उसमें पोयम में कहीं उसका कोई है नहीं बात. Cynthia, the moon goddess, he was enchanted, and then he started roaming here and there. And this one poem that you are reading is only a small part of the whole thing that has been written. जो whole thing है, that is Endymion, a poetic romance. So Cynthia, यहाँ पर ये वाली पोएम के अंदर सिंथिया का ये तो बैकग्राउंड में आपको बताया गया है सिंथिया के बारे में. In this particular extract that you have read, it is basically themed upon nature, highlighting the nature. Yes, is it clear, Ishita? Yes, ma'am. Okay. So, question 1 is, list the things of beauty mentioned in the poem. List the things of beauty mentioned in the poem. Yes, Simarpreet. There are many things of the beauty: the sun, the moon, the daffodils, stream with clear water, roses, etc. Beautiful. Very, very nice. Very good. Musk roses blooming in the midst of the forest. So many beautiful. मैम ऑल द रोजेस भी लिख सकते हैं ना, जितने भी फ्लावर्स या जो भी Yes, हैं उसके yes, अंदर. yes, yes. So next question is, list the things that cause suffering and pain. List the things that cause suffering and pain. Gursharan Kaur. Disappointment, despair, loss of faith. Okay. आप बताओ इशिता. Things that cause suffering and pain: despondence, spite, malice, inhumanity, cruelty, over darkened ways, and unhealthy ways. मेलाइस है, मेलाइस. बहुत ही साल तक खुशवंत सिंह, जिन्होंने पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी लिखा था, he kept sick scholar and writer, so he used to write with malice towards everyone. हिंदुस्तान टाइम्स के अंदर एक कॉलम he would write down. Okay, so ये वाली सारी things creates pain, and दोनों का ही आंसर राइट है, गुरशरण का भी और इशिता का भी. Next question is, what does the line, therefore are we wreathing a flowery band to bind us to earth, suggest to you? इस क्वेश्चन से तुम्हें क्या पता लगता है कि क्या हम अपना और नेचर का रीद कर रहे हैं, जो हमारा रिलेशन है, रिवाइव कर रहे हैं? पार्टिसिपेट करो. नहीं लिखे हुआ तभी भी पार्टिसिपेट करो, कोई बात नहीं. इंस्टेंटली जो भी बोल पाओगे स्पॉन्टेनियसली, सही गलत से कुछ फर्क नहीं पड़ता. द थिंग इज पार्टिसिपेशन. इशिता. This line suggests that the relationship of human and nature is very delicate, like a flower, and every morning we bind our relationship with the nature It is by that, praising its beauty. okay, but it is that we have, it is a very delicate balance of humans and nature, and it has to be revived because the strip is very narrow. The attachment of the attaching thing is very narrow, so we have to revive it, which means that we have to every day remember
that there are so many beautiful things showered on us by Almighty God and nature. We have to preserve them. We have to protect them. So the poet is asking the reader, are we reading the delicate band that we have? Are we once again creating this feeling that nature is there to look after us, the respect for nature, the preservation of the things of nature, right? So next question is, what makes human beings love life in spite of troubles and sufferings? जब इतनी प्रॉब्लम्स होती हैं फिर भी इंसान जो है अपनी जिंदगी कैसे चलाता है? नूरदीप आंसर करेगी इसको. Ma'am, because they kind of human beings love nature. That's why maybe. Okay, I am happy that you answered and you tried. Simarpreet, right, wrong? मैम पॉजिटिविटी के साथ करता है अपना. I intervened. दोबारा से शुरू कर दो अपना आंसर. मैम पॉजिटिविटी के साथ स्टार्ट कर सकते हैं. In spite of troubles and sufferings, एक और है इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो कि थीम है पूरी सारी थिंग का. क्या चीज है जो हमारे को बहुत हम तंग होते हैं लेकिन फिर भी हमारा जो ये फीलिंग है रिजुविनेट करने की. दीपांशु आप ट्राई करो. पोयम का नाम क्या है? जो पोयम का नाम है वही इसका आंसर है. मैम ब्यूटी ऑफ नेचर. अ थिंग ऑफ ब्यूटी. किसी के लिए नेचर हो सकती है, किसी के लिए कुछ भी हो सकता है. एन ओल्ड सॉन्ग, अ न्यू क्रिएशन, कुछ भी हो सकता है किसी के लिए. सो बेसिकली what makes human beings love life in spite of troubles and sufferings? A thing of beauty makes human beings love life in spite of having all troubles, because that creates a feeling of positivity in the heart that gives the strength to fight the battles of life. In the desert of life, when there are disappointments, but when the remembrance of that thing of beauty is there in the mind, it gives courage to go on. Is it clear? Class 12? लक्ष्य अपना ऑन करो ये वीडियो. गौरीश, Gaurish Minocha, you should also switch it on. Why is grandeur associated with the mighty dead? ग्रैंडियोर को माइटी डेड के साथ क्यों एसोसिएट करा हुआ है? ग्रैंडियोर का चलो मीनिंग बताओ, मैं हेल्प करती हूँ आंसर्स को करने में. बताओ ग्रैंडियोर का मीनिंग. हाँ जी बेटा. खुशबू क्या? स्प्लेंडिडनेस, मैग्निफिसेंस. ओके, सो माइटी डेड का क्या मीनिंग है? जो मरकर भी आप लोगों की मेमोरीज में जिंदा है, जो मरकर भी नहीं मरे, इतने पावरफुल हैं that they have become a source of inspiration. So जो मीनिंग है इस पूरे इसका क्वेश्चन का वो ये है कि ग्रैंडियोर माइटी डेड के साथ क्यों एसोसिएट करा हुआ है? Mighty dead who have become a source of inspiration for the living beings, and despite their not being there physically, their tales are read or heard, and it is believed that those who are mighty dead, they go to heaven, which has got the grandeur. That is one explanation. The second explanation is that the tales which are read and which are heard of the mighty dead, those tales have got magnificence, those tales have got grandeur, because they are inspiring a lot of people in this world. They have become the thread to hold on for a lot of people.
इज इट क्लियर? माइटी डेड इसलिए एसोसिएटेड है ग्रैंडियोर के साथ क्योंकि ये माना जाता है कि जो माइटी डेड है वो कहाँ जाएगा? हेवन में। लिटरल मीनिंग है इसका। इसका डीपर मीनिंग है कि उनकी जो एक्शंस हैं, जो उन्होंने अच्छी बात करी, नोबिलिटी जो उन्होंने करी, उस नोबिलिटी को लेकर दूसरे वाले लोग जब इंस्पायर होते हैं तो वो कैसे उनका हो जाता है? ग्रैंडियोर हो जाता है, उनका मैग्निफिसेंस होता है, जिसको कि हम रिकॉग्नाइज करके अप्रिशिएट करते हैं। हम हमेशा ऐसे वाले माइटी डेड के बारे में बात करने में मन में वाओ फीलिंग लेकर आते हैं। क्लियर हो गया बेटा? क्लास 12 क्लियर हो गया मीनिंग? यस मैम। Okay. Yes, ma'am. Next question is, do we experience things of beauty only for short moments or do they make a lasting impression on us? क्या वो जो things of beauty होती हैं वो थोड़ी देर के लिए ही सिर्फ हमारे लिए thing of beauty होती है कि वो हमेशा के लिए हमारे लिए thing of beauty होती है, eternal होती है वो? इशिता, फिर उसके बाद सिमरप्रीत। Things of beauty leave indelible impression on us. Their loveliness increases with time and they never pass into nothingness. Okay. So they give a long-lasting impression on us. Okay. जो थिंग ऑफ ब्यूटी है वो क्या करती है? वो हमारे को लॉन्ग लास्टिंग एटर्नल हमारी लिए बन जाती है, सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन। सिमरप्रीत भी कुछ कहना चाहती है? लास्टिंग इंप्रेशन देती है। इंडेलिबल बहुत अच्छा वर्ड यूज करा था इशिता ने। सिमर दोबारा से बोलना है बेटा। मैम लास्टिंग इम्प्रेशन देती है थिंग्स ऑफ ब्यूटी जो है। ओके, बिकॉज वो क्या करती है, जो अगर कोई सच्ची की थिंग ऑफ ब्यूटी है तो वो हमेशा इंस्पायर करती रहेगी। अगर वो टेम्परेरीली खाली इंस्पायर कर रही है और हमें सुंदर लग रही है तो वो इसका मतलब वो थिंग ऑफ ब्यूटी नहीं है, इसका मतलब वो इल्यूजन है, वो भ्रम है हमारे मन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, इनफैक्ट लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इमेज डज द पोएट यूज टू डिस्क्राइब द ब्यूटीफुल बाउंटी ऑफ द अर्थ? क्या इमेज डिस्क्राइब करी है पोएट ने? जॉन कीट्स ने कैसी इमेज बनाई है कि नेचर जो है वो एंडलेसली पोरिंग ब्यूटी ऑन टू अस? It reiterates that we are existing along with nature. Gursharan, yes बेटा? मैम उसने ये बताया कि प्रेजेंट उसने हमें कितने सारे प्रेजेंट दिया नेचर ने, लाइक सन, मून, ट्रीज, वाटरफॉल्स और रोजेस, ऐसी और चीजें भी दी हुई हैं। ओके, ये वाली ब्यूटीफुल बाउंटी ऑफ द अर्थ डिस्क्राइब करा है। सिमरप्रीत प्लीज बेटे। Ma'am, the poet give us an image of the bounty of earth as an endless fountain of nectar. Okay, very nice. Anybody else who wants to add anything in it? Okay, जो लास्ट इसके अंदर ग्रे वाला बॉक्स है उसमें लिखा हुआ है, नोटिस द कंसिस्टेंसी इन राइम स्कीम एंड लाइन लेंथ. Also notice the balance in each sentence of the poem, as in of noble nature, of the gloomy days, of all the unhealthy and over darkened ways, made for our searching, yes in spite of all. So poetic जो appreciation of the poem है वो भी हमें poem के अंदर साथ साथ सीखना होता है. Days, ways, rhyme कर रहे हैं और उसकी length जो sentences की है वो भी equalize करी हुई है. जो आपने पहले कीपिंग क्वाइट पढ़ा था उसके अंदर जैसे जैसे सोच चलती थी वैसे वैसे कोई स्टैंजा बड़ा कोई स्टैंजा छोटा था. दोबारा से उसको खोलकर अपनी बुक को ये वाली बात को डिटरमाइन कर लेना, देख लेना. ओके, जो अभी कल वाली जो क्लास होगी, आपका कल यूनिट टेस्ट है, आप लोगों का लास्ट यूनिट टेस्ट है कल आपका. यस मैम. यस मैम. ऑल राइट. सो जो कल वाली जो आपकी बेटे क्लास होएगी वो वाली क्लास के अंदर हमने फ्लेमिंगो, लेट्स वंस अगेन एक बारी ये वाली चीज को हम चेक कर लेते हैं कि हमने क्या कर लिया, क्योंकि हम सेमेस्टर एग्जामिनेशन में ऑलमोस्ट पूरा सिलेबस देंगे. तो
Last lesson we have done Lost Spring, Deep Water, Rat Trap, Indigo. अब मुझे ये बताओ कि Poets and Pancakes इंटरव्यू और गोइंग प्लेसेस डिलीट हो गया है सिलेबस में से? Yes, ma'am. Yes. Ma'am. My mother at 66, we have done an elementary school classroom in a slum, we have done Keeping Quiet, A Thing of Beauty. मैं आपको कल वाली क्लास के अंदर आंट जेनिफर्स टाइगर्स एक्सप्लेन करूंगी और उसके साथ में हमारी बुक 1 फिनिश हो जाएगी और हम मंडे से लेकर विस्टास बिगिन कर देंगे. ओके, इज इट ओके? अनसीन पैसेजेस हैं आपके सिलेबस के अंदर, लेटर्स हैं आपके सिलेबस के अंदर, आर्टिकल है और शायद स्पीच और रिपोर्ट जो है वो डिलीट हो गई. आई विल क्रॉस चेक एंड सेंड अ मैसेज टू यू वंस अगेन. मैं उसको दोबारा से देख के बोलना चाहती हूँ ताकि कहीं पे भी मैं आपको गलत इंफॉर्मेशन ना दूं. क्लास 12 कोई क्वेरीज हैं, कोई क्वेश्चंस हैं, कोई तुम बात पूछना चाहते हो? मैम इस चैप्टर में से हुए हैं. गुरशरण मुझे दोबारा पूछो बेटे. मैम ये वाले चैप्टर में से और इंडिगो में से कौन कौन से नोटबुक में करने हैं क्वेश्चंस? कोई भी ऐसा चैप्टर नहीं है जिसके नोटबुक में क्वेश्चंस नहीं करने. सबके ही करने Okay, हैं, ma'am. सबके ही करने हैं, बारी बारी करके सबके ही करने हैं. एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक और बात है मेरे को बतानी है आपको. जो आप अभी क्लास के अंदर पार्टिसिपेशन करते हो, जो आप अपने असाइनमेंट्स आप करके देते हो, अभी मैं इसके बाद में आपको कल वाली क्लास के बाद में आई विल सेंड यू एन असाइनमेंट, क्योंकि आपका यूनिट टेस्ट कल फिनिश हो जाएगा. मैं आपको एक छोटा सा, समझो कि 10 क्वेश्चंस मैं अलग अलग लेसन्स में से बनाकर दूंगी और विद दिस एक्सपेक्टेशन कि आप वो वाली असाइनमेंट को अटेम्प्ट करके मुझे भेजेंगे चेक करने के लिए, ईमेल करेंगे ताकि मैं उसको मार्क करके आपको रिटर्न कर सकूं, आपको वापस मैं मेल कर सकूं. दैट इज 1. और 2, नंबर 2, जब आपका 20 मार्क्स की आपकी इंटरनल असेसमेंट होगी, उन 20 मार्क्स के अंदर आपकी क्लास पार्टिसिपेशन, आपका बिहेवियर, आपकी यूनिट टेस्ट के मार्क्स, आपकी नोटबुक, सब कुछ, और आपकी लिसनिंग, स्पीकिंग स्किल्स, एवरीथिंग शैल बी टेकन केयर ऑफ. So you have to be very obedient, you have to be very nice, not only with me, with everyone, with all the teachers. और अपनी क्लास के सब बच्चों को बोलो कि रेगुलरली जूम के ऊपर क्लासेस अटेंड करने का मतलब है वीडियो ऑन करके क्लासेस अटेंड करना. एंड एवरीबडी शुड ट्राई एंड डू इट. इट इज नॉट अ वेरी डिफिकल्ट थिंग. मैंने देखा है लोग फोन के ऊपर कंफर्टेबली मैनेज कर रहे हैं, दूसरे स्कूल्स के बच्चे. सो यू कैन ऑल्सो डू इट अगर तुम चाहो तो. राइट? So that's it for the day today. अगर किसी की कोई क्वेरी है तो मुझे पूछ लो, अदरवाइज आज की क्लास यहीं तक ही एंड करनी है मेरे को. Anything you want to ask class 12? मैम प्रोग्रेस में से कौन से कट हुए हैं? एक मिनट बेटा.